I run India's biggest infotainment influencer marketing agency, managing some of the biggest creators in India. And let me tell you this, that content creators earn more than doctors, engineers, and even CEOs. They don't study 10 years like doctors. ना ही वो हजारों असाइनमेंट करते हैं इंजीनियर्स की तरह, ना ही वो IIM ABC के पास आउट होते हैं. तो इतना पैसा उनको किस चीज का मिलता है? मैं भी यही सोचता था, but when you zoom out and look how actually business works, you will also understand why creators make so much money and how you can understand the fundamental, utilize it and make money. ये समझने के लिए पहले समझते हैं कि पैसा बनता कैसे है. To see why these creators earn so much money and how you can make more money, we have to understand where it all started, where money began. पहले क्या होता था ना, पहले पैसा थोड़ी होता था, पैसा इन्वेंट किया गया. Everyone was kind of surviving with whatever resources they had. But as we evolved, we started needing more things. खाना, कपड़े, shelter, protection, all of that, right? That's when the concept of money was born. If you need something from someone, you had to give them something. कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा. The simplest form of money was born, या फिर barter system, मैं आपको ये दूंगा, आप मेरे को ये दो. But धीरे धीरे हुआ क्या, सबकी needs complicated होने लग गई. सिर्फ एक दर्जन चावल देख के एक दर्जन रोटी से नहीं हो रहा था. What I was able to offer, you wasn't finding valuable enough. But I still wanted something from you. तो कैसे एक्सचेंज होगा अगर मेरे पास ऐसी चीज ही नहीं है जो आपको चाहिए और आपके पास वो चीजें जो मुझे चाहिए? That was when currency was formed, the official invention of money. This was around 5000 BC if I'm not wrong. And तब से money has been signifying for one thing, value. अगर आप value provide करते हो तो आप पैसा कमा सकते हो. That is simple concept of money. But आप बोलोगे कि भाई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सीईओ से ज्यादा वैल्यू थोड़ी क्रिएटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. And you're right. But let's understand a little more, why do influencers make more? It's not just about creating value. It's also about delivering it. आपने एक प्रोडक्ट बना के रखा है बट आपके घर पे रखा है, लाखों और हजारों लोगों के पास वो पहुंचा ही नहीं है, तो आप पैसे कैसे कमाओगे? Even thousands of years ago, having gold wasn't enough. अगर आप उसको डिलीवर ही नहीं कर पा रहे थे to someone who can value it. Just think about it. I've made a product which the world wants, but I don't have the resources and the ways to give it to the world. Then मैं कैसे पैसे कमाऊंगा? नहीं कमा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास वो वैल्यू देने का तरीका नहीं है. So point being, delivering value is as important if not more important than actual value itself. Meaning पैसा वैल्यू में नहीं था, वैल्यू की डिलीवरी में भी था. This realization sparked one of the biggest significant business evolution, which is distribution. उस समय में लोगों के पास था बहुत कुछ, जमीनें, गोल्ड वगैरह वगैरह, बट उनके पास वो तरीका नहीं था डिलीवर करने का. Delivering the value to people who needed it. And this is what led to the development of roads, transport, developing a network. अगर आप इंडिया की भी हिस्ट्री देखो, जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए थे, उन्होंने रेलवेज पूरे इंडिया में बना दिया था फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. एंड बिकॉज दे वर एबल टू कंट्रोल रेलवेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाई दे वर सो पावरफुल विद इन द कंट्री. एंड इंडिया छोड़ो, अगर आप ग्लोबल हिस्ट्री भी देखो, सो पीपल हु कंट्रोल्ड नेटवर्क्स हेल्ड द रियल पावर. Huge trade routes were established across mountains, deserts and ocean. From Silk Road जो एशिया में है to the massive ports in Rome. ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था ताकि वो कंट्रोल कर पाएं कि डिलीवरी किसको हो रही है, डिलीवरी नेटवर्क कौन क्रिएट कर रहा है. बिकॉज आप शायद एक नया प्रोडक्ट इन्वेंट कर सकते हो, बट उसको डिलीवर कैसे करेंगे? अगर आपने डिलीवरी वाले सिस्टम को कंट्रोल करके रखा है, अगर आपने पूरी शिप्स को, फ्लाइट्स को, सड़कों को कंट्रोल करके रखा है, so you can charge money for it irrespective of whoever is inventing whatever products. Rome also became the Roman Empire because they controlled so many ports, and in ports के थ्रू ही ट्रेडिंग होती थी. The key principle behind all of this, networks, distribution and the ability to deliver value. Did not matter what product you had. If you had the transport, you could find someone in the world who needed that particular product. And जैसे जैसे वर्ल्ड मॉडर्नाइज होती गई, जैसे जैसे वर्ल्ड आगे बढ़ती गई, रेवोल्यूशन आते गए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ईच रेवोल्यूशन wasn't just a technological upgrade. It was also a redefinition of कैसे वैल्यू बन रही है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है to thousands and hundreds and lakhs of people, not only within a country but in the entire globe. The role of distribution became even more powerful. And first revolution में जब steam engine आया था, these steam engines powered trains, vehicles, ships, and because of these steam engines, factories produced goods with lightning speed. Now people had to build more roads, more railways, have more ports because the ability to supply these products were much higher now. And the real money wasn't in owning factories. The real money was owning railways, the ports, the vehicles. एक फैक्ट्री मान लो एक महीने में 100 मशीन बेचती थी, बट ट्रांसपोर्ट कंपनी ऐसी 100 कंपनीज के लिए 100 प्रोडक्ट्स बेच रही हैं. So the delta, the compounding, the volume that these distribution companies had was so much higher, and वो भी monthly recurring revenue बनता था.
And without transport, those companies can go literally bankrupt. बिकॉज अब R&D में पैसा खर्च कर रहे हो, आप नए नए प्रोडक्ट बना रहे हो, बट आपका प्रोडक्ट डिलीवर करने का सप्लाई चेन ही नहीं है. एंड जो गुड्स को सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था वो सबसे ज्यादा पैसे बना रहा था. एंड इस टाइम पे आया सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द लेट 1800s. एंड ये बड़े बड़े बिजनेसमैन को समझ में आने लग गया, एंड दैट्स व्हाई एवरीबॉडी स्टार्टेड टू ओन डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि रोड ब्लॉक कर पाए और बाकी लोगों को एंट्री ना दे पाए. कंपनीज लाइक स्टैंडर्ड ऑयल डिड नॉट जस्ट रिफाइन ऑयल, they built pipelines and railways to control the distribution of their refined oil. Henry Ford ने भी सिर्फ cars नहीं बनाई, he created a production and distribution model so efficient that the Model T reached millions of people. The companies that earned the most money were the ones who owned distribution as well. The quality of the product was the second half of the equation. यही देख के corporations गेट कीप करने लगे डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज को आने से. वो नहीं चाहते थे कि कोई और नई कंपनीज आए और नया डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करे, एंड हेंस द ओल्डर द बिगर कंपनीज वांटेड टू कंट्रोल एज मच डिस्ट्रीब्यूशन एज पॉसिबल. एंड इसी टाइम पे ओनिंग अ फैक्ट्री वाजंट एनफ. यू हैड टू ओन ट्रक्स, द रेल कॉन्ट्रैक्ट्स, द रिटेल स्टोर्स एंड इवेंचुअली एडवर्टाइजिंग, क्योंकि रीच वाज एवरीथिंग. फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर बेल, जिन्होंने टेलीफोन बनाया था, he could not do anything with that until he actually partnered with a company AT&T. And उनके पास था distribution, and they distributed that invention across the globe. So once again, just like an ancient Rome, control over distribution meant control over value. And ये सालों तक चलता गया until one day distribution would go digital. The invention of radio followed by television introduced the world to a new kind of distribution. Distribution of attention no longer was influence tied solely to how many goods you could move or how far your ships could sail. Now, power belonged to those who could broadcast their message across millions of living rooms at once. For the first time, companies did not need to go door to door to sell a product. अब वो अपने रूम में बैठे बैठे एक 30 सेकंड का जिंगल और एक एडवर्टाइजमेंट प्ले कर सकते थे, एंड लाखों प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिक सकते थे. एंड हु मेड द मोस्ट मनी इन दिस टाइम? Not the companies selling the products alone, but people who owned radio and people who owned TV networks as well. एक तरीके से देखा जाए तो टेलीविजन चैनल्स, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स, ये नए हाईवेज बन गए ऑफ कॉमर्स, और जो मीडिया नेटवर्क थे ये नए गेटकीपर्स. Businesses now had to buy distribution often at a premium. They paid media houses for space, for airtime, for access, and return को क्या मिलता था? Attention. And this marked the era where money followed eyeballs. And whoever controlled eyeballs controlled the market. And अगर आप बहुत ध्यान से देखो, distribution has always been this one thing: getting your product in front of someone's eyes, inside someone's mind. चाहे वो रेलवेज के थ्रू हो या एड्स के थ्रू हो, उसी की वजह से आपको पैसा मिलता है. अगर लोगों के दिमाग में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, तो चाहे कितना भी अच्छा हो आप, you will stay broke. जो दिखता है वो बिकता है, और जो मिलता है वो लोग खरीदते हैं. द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जस्ट एनहांस दैट कोर प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मनी, डिस्ट्रीब्यूशन. बट ये मॉडल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. जॉन वानामेकर, द मेन गाय बिहाइंड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, सेड दैट half the money I spend on advertising is wasted. The trouble is I don't know which half. Well, प्रॉब्लम ये थी कि टीवी, रेडियो, प्रिंट, ये सब एडवर्टाइजिंग से आपको पता नहीं चलता था कि कितने लोगों ने आपका एड देखा है, कौन है वो लोग, and whether the ad worked or not. You were just shouting in the dark, hoping someone would listen. And सालों के बाद आया क्या? सोशल मीडिया, जिसने सब कुछ बदल दिया. Suddenly, it became possible to know exactly who was watching. उनकी उम्र या जेंडर नहीं, but what they like, what they scroll, when do they use the phone, when do they use the TV, what they skip, what they buy, everything. Platforms did not just host content, it studied behavior, it studied psychology. And in that moment, attention stopped being a side effect of media, it became the product itself. And अब एक और चेंज आया, जो हजारों साल से डिस्ट्रीब्यूशन को लोग गेटकीप कर रहे थे, अब वो नहीं कर पा रहे थे. आज कोई एक इंसान अपने सेल्फी कैमरा से उतने ही लोगों तक पहुंच सकता है जितना एक मीडिया कंपनी अपने 10 कैमरा सेटअप के साथ पहुंच सकती है, एंड शायद उससे ज्यादा भी. मीडिया कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करती है, और एक इंडिविजुअल क्रिएटर लिटरली 0 रुपीस खर्च करके भी लाखों लोग तक पहुंच सकता है. Here is where creators became the new gatekeepers of distribution, not because they owned factories, not because they built roads, but because they held your attention. And creators कोई नए phenomena नहीं है. The concept of influence had always existed. For example, TV stars who could sell a Vimal pan masala just by lifting 2 fingers onto the camera. Distribution हमेशा audience को follow करती है.
पहले वो मार्केट्स में हुआ करता था फिजिकल, फिर वो थिएटर्स में चलने लग गया और आज वो हमारे लिविंग रूम्स में भी आ गया है। एंड सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंस्टाग्राम फीड में, हमारे फोन में, हमारे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में। इट वाज जस्ट दैट नाउ एनीवन कुड बिकम एन इन्फ्लुएंसर। दैट वाज द बिग चेंज। एंड जहाँ पे ऑडियंस है वहाँ पे कॉमर्स होता है। कॉमर्स मतलब ट्रांजैक्शंस होते हैं, लोग सामान खरीदते हैं। एंड दैट्स व्हाई ब्रांड्स पे क्रोर्स टू इन्फ्लुएंसर्स। इसलिए नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसकी वजह से वो लाखों लोगों को रीच कर पा रहे हैं। एंड इन ब्रांड्स को भी वो लोगों को रीच करना है, वेदर यू आर डांसिंग फॉर 15 seconds और डूइंग अ 1 hour पॉडकास्ट। अगर लोग आपको देख रहे हैं देन यू हैव समथिंग दैट मोस्ट पीपल डू नॉट हैव, attention, influence, which is distribution. And the beauty of digital distribution is that it's measurable. Every like, every share, every click is a data point. Brands no longer have to guess क्या चला क्या नहीं चला, उनको पता है। एंड एक डायरेक्ट लाइन हो गई है फ्रॉम प्रोडक्ट टू कंज्यूमर बिकॉज ऑफ दीज क्रिएटर्स, because of performance marketing. This is the same reason why performance marketing works so beautifully. Because आप मेटा में, गूगल में, यूट्यूब में, टिकटॉक में, लिंक्डइन पे एड चला के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लोगों तक कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाई क्रिएटर्स आर अर्निंग मोर देन डॉक्टर्स, not because they are more skilled, not because they are more essential, but because they have more distribution. And if you are someone who is a doctor, an engineer, a CEO, or anyone with a specialized skill, you need to accept the fact that this is a phenomena which is here to stay. जब पुराने टाइम पे इकोनॉमीज एक्सपैंड हो रही थी एंड दे वर मेकिंग ट्रेड राउट्स एंड पोर्ट्स एक्सेट्रा, पीपल डिड नॉट कंप्लेन कि तुम लोग क्यों ट्रांसपोर्ट से पैसा कमा रहे हो। दे जस्ट मेड मोर प्रोडक्ट सो दैट दे कुड एक्सपोर्ट इट टू अदर्स। सो इफ यू आर समवन विद अ स्किल, यू नीड टू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप एक डॉक्टर इंजीनियर और आपके पास भी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, इमेजिन द नंबर ऑफ पीपल यू कैन रीच आउट टू, imagine the number of people you can impact, the amount of money you can charge, the amount of establishments that you can make. The broker that went viral, he's probably not the best broker, but he gets the most and the biggest deals, right? Q? Because he has the highest distribution and the highest eyeballs. And in the history of business, that has always been the winning game. ये बात समझ लो कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट एडिटर, एक्टर, डिजाइनर, डॉक्टर हो सकते हो, बट अगर आपके पास राइट आईबॉल्स नहीं है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, राइट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आपका स्केल हमेशा लिमिटेड रहेगा। अब ये समझते हैं कि एक्चुअली में क्रिएटर्स कितना पैसा कमाते हैं। अगर आप एक फाइनेंस क्रिएटर हो जिसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, देन हमने फिनेट में देखा है कि आप 50,000 से 2 लाख रुपए कमा सकते हो। हम 2 से 3 अगर एक क्रिएटर को दे रहे हैं 50 to 75,000 रुपीज में, 50,000 to 2 लाख का आप इनकम कर सकते हो। फॉर समबडी इन द लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी स्पेस, आपके पास और बहुत ज्यादा ब्रांड के ऑप्शन होते हैं और 1 लाख फॉलोअर वाले भी आराम से इतना पैसा कमा लेते हैं बिकॉज उनकी ब्रांड डील की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, भले अमाउंट 10-15 हज़ार रुपए कम हो सकता है। इंफोटेनमेंट कंटेंट क्रिएटर्स का भी फाइनेंस क्रिएटर की तरह होता है। इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स मतलब जो बिजनेस केस स्टडीज बनाते हैं, जो मार्केटिंग का कंटेंट बनाते हैं, जो डिजाइन का कंटेंट बनाते हैं, ऑल ऑफ दैट। और इसके अलावा भी बहुत सारे अलग तरीके होते हैं एज अ क्रिएटर पैसे कमाने का। अगर आपको क्रिएटर बनना है या क्रिएटर कैसे पैसे कमा सकते हैं उसमें इंटरेस्ट है तो आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख लो। इसमें हमने डिटेल में समझाया कि हम फिनेट मीडिया में क्या करते हैं, क्रिएटर्स कैसे पैसे कमा सकते हैं, अलग अलग तरीके क्या होते हैं पैसे कमाने के। और अगर आपको सच में कंटेंट बनना सीखना है तो मैंने और अनुष्का ने, जो हमारे क्रिएटर है फिनेट में, एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें हम आपको पर्सनल ब्रांडिंग सिखाते हैं, जिसमें इंस्टाग्राम में कंटेंट कैसे बनाते हैं वो भी है और लिंक्डइन पे रिटन कंटेंट फॉर पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा वो भी सिखाते हैं। आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज 80% ऑफ द व्यूअर्स हु कम टू दिस चैनल डू नॉट सब्सक्राइब। अगर आपको ऐसी और बिजनेस और इंफोटेनमेंट की वीडियोस देखनी है तो आई बटन पे आप क्लिक करके हमारा पॉडकास्ट प्लेलिस्ट और इंफोटेनमेंट प्लेलिस्ट दोनों देख सकते हो।